Hi everyone. Today again come to for the third assignment of the if statement. Let's take first example. The following table shows the sales configure and target cells respectively. Each of them has their own target which they must reach. If the cells are greater than the equal or greater equal to target, then achieve. Otherwise, they are not achieved. This is the sales Alan has done. This is the sale Bob and this is Carol. And these are the target for them. What will be the result? If sale is greater than equal to target, then they achieve, otherwise they have not. So let's take equal if open bracket. What the logic is, if sale is greater than equal to target, means सेल का वैल्यू टारगेट के वैल्यू के बराबर या ज़्यादा रहेगा, देन दे हैव अचीव द टारगेट. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई टाइप ए सी एच आई achieved. Value false will be not achieved. So double inverted comma I will press not not a not achieved. Sorry. Not achieved. So double inverted comma close, then close bracket, shows as a not achieved. If I drag this, so this target is 6,000, so it is but better varam. Suppose if Carol has achieved as a 4,000, it will show as a achieved. If it is as a 3,999, it shows as a not achieved. Okay. Then next is sales. If sales are greater than or equal to target, commission is 10% of the sale. If sales do not reach the target, commission is only 5% of the sale. So again, where I type as achieve over here, it has to be 10% into sales, and where not type where I have typed not achieve, the sale will be 5% of the sales. Commission will be 5% of the sales. So equal if open bracket again sale is sale is greater than equal to target, comma, commission will be sale into 10%, comma, otherwise commission is sale into 5%. So just close bracket, enter. So this is 50 rupees because it is a 5% not achieved target. Here Bob has achieved target, so it gives us a 10% of his total sales. Will be builders. Okay, example, the builder merchant give 10% discount on certain product lines. Discount is given on a product which are on a special offer. Special offer means जहाँ पे special offer S लिखा रहेगा and order value 1000 and above. यानी डिस्काउंट कब मिलेगा? अगर स्पेशल ऑफर एस और ऑर्डर वैल्यू 1000 एंड अबव, यानी दोनों अगर अचीव होता है, देन ओनली they will get the discount. Okay, and discount is how much? 10% on product value, order value. So यहाँ पे करना है equal if open bracket. Now we have two logics and one single answer. So to and an or, then both logics I have to use compulsory. यानी special offer भी चाहिए और value greater than 10 भी चाहिए. Okay, अगर दोनों रहेगा then only 10% है. So logic test क्या आएगा देखो, and open bracket special offer equal to double inverted comma में I type s, comma, logic to order value 1000 or above, so greater than equal to 1000, close bracket, value true is 10% of the product line, so product order value into 10%, otherwise it's 0. So I press enter, so it's a 200 because स्पेशल ऑफर से 1000 के ऊपर ऑर्डर है. सो बोथ शोज, यहाँ पे देखो स्पेशल ऑफर है लेकिन ऑर्डर 500 है, सो दे विल नॉट गेट द डिस्काउंट. सो दिस व्हाट इज टोटल? टोटल शुड बी इक्वल टू ऑर्डर वैल्यू minus discount, that is the total they have to pay. So I drag this one, fill handle, I double click this, so what I will get the total paid
has to be done. Payment has to be done. Then there is next. Now following handling charges of 5 is made for all orders made by Visa and Delta cards. अगर उसका कार्ड वीज़ा या डेल्टा रहेगा, दोनों में से कौन सा भी रहेगा, तो हैंडलिंग चार्जेस कितना रुपए देना है, 5 रुपये. तो यहाँ पे देखो इक्वली ओपन ब्रैकेट. अगेन वी हैव मल्टीपल लॉजिक्स, और पर लेकिन लॉजिक में क्या चाहिए, आइदर वीज़ा आइदर डेल्टा, दोनों में से कौन सा भी एक कार्ड चाहिए. सो आई प्रेस और ओपन ब्रैकेट, फर्स्ट लॉजिक इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई टाइप वीज़ा कॉमा अदरवाइज पेमेंट टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में डेल्टा. ओके, डबल इन्वर्टेड क्लोज द ब्रैकेट. This is what my logic test. Value true, I have to give 5 rupees discount. Yeah, 5 rupees handling charges I have to apply. Otherwise it should be 0. Close bracket करना. Now I drag this one. देखो जहाँ पे Visa and Delta card रहेगा, where it will be applied as a 5 rupees as a handling charges. Go for the next. Fifth example. The following table was used by the library to track books borrow. यानी बुक्स बोरो किया, वो ट्रैक करें. कैलकुलेट वेदर द बुक वॉज रिटर्न विद इन द करेक्ट टाइम बाय एडिंग द लोन वैल्यू विद द टेकन डेट. इफ बुक वॉज नॉट रिटर्न ऑन टाइम, रिजल्ट ओवर ड्यू इज शोन, अदरवाइज ओके एज शोन. सो लेट्स सॉल्व. यानी आपको लॉजिक क्या है, देखो हम लोगों ने बुक्स लिया जिस तारीख को, वहाँ से 14 दिन के बाद अंदर हम लोग को रिटर्न करना. सो मुझे क्या करना है, 1 जून प्लस 14 डेज शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रिटर्न डेट. अगर लेस देन और इक्वल टू रिटर्न डेट अगर रहते, ग्रेटर देन रहेगा, तो इट इज लुक्स एज अ स्टेटस एज अ ओके. ओके, सो हम लोग को क्या देना है, इक्वल ओपन ब्रैकेट देता हूँ. फर्स्ट देखो हम लोग लॉजिक डाल रहे हैं, प्लस दिस वैल्यू. यानी अगर ये दोनों वैल्यू कितना आता है, 15 जून 15 जनवरी और रिटर्न किया है 5 जनवरी, तो इट्स ओके, बराबर ना. तो 15 जून का जो वैल्यू रहेगा, इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन रिटर्न ओके. सो ट्रू बोल रहा है, तो ट्रू बोल रहा है नहीं, इट्स ओके. सो पहला मैंने लॉजिक इंसर्ट किया. नाउ दिस लॉजिक हैज टू बी इंसर्टेड इन इफ. सो आई प्रेस इफ ओपन ब्रैकेट इन, if it is over true रहेगा, so I have to press OK, otherwise it is overdue. Okay, then I have to press close bracket, enter. Okay, sorry, यहाँ पे if का ओपन ब्रैकेट नहीं दिया हम लोगों ने, ओपन ब्रैकेट एंटर. ओके, सो यहाँ पे रेस करना, ड्रैग करो. ओके, overdue. नाउ द वैल्यू शुड बी, सॉरी लॉजिक शुड बी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा, तो ओके. यानी 15 दिन के ओवरड्यू था, ओवरड्यू के दिन ही मैंने बुक्स रिटर्न किया, तो इट्स ओके. यानी ये 15 तारीख का लोन डेट आ रहा है और मैंने 15 तारीख को रिटर्न किया रहेगा, सो इट्स नॉट ओवरड्यू. सो लॉजिक विल बी लाइक, दोनों का सेल का वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रहना चाहिए. अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो ओके. यानी अगर 15 दिन और ये भी 15 दिन आ रहा है, 15 दिन का डेट आ रहा है, तो इट्स ओके. लेकिन ये 16 जा रहा है और ये 15 है, कम है, यानी ये डेट के आगे ये जा रहा है, तो गलत रहेगा, तो ओवरड्यू आ जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रैग दिस वन. ओके, सो दिस विल बी ओके. यानी हम लोग का लॉजिक क्या बोल रहा है, अगर लोन का डेट जो आ रहा है वो आपने रिटर्न किया डेट के साथ मैच हो रहा है या रिटर्न किया डेट उससे कम रहेगा, तो वी आर गिवन इन अ राइट टाइम, अदरवाइज इट्स ओवरड्यू. सो हम लोग यहाँ पे ओवरड्यू देते हैं. सो दैट इज द लॉजिक व्हाट वी हैव टू कीप. देन नेक्स्ट example 6. Now here is a little bit trick you have to use, so pay attention for this one. Calculate the eligibility criteria for a person. Okay, if okay, so यहाँ पे देखो अगर मेल रहेगा और उसका एज ग्रेटर देन 21 रहेगा, तो ही इज एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल. अगर फीमेल रहेगी तो उसका एज ग्रेटर देन 18 चाहिए, देन शी विल बी एलिजिबल, अदर नहीं.
So let's say for the simplicity, I put single logic and then I will combine that logic together. So let's take first logic. The if gender is equal to male and age should be greater than equal to 21. ओके यानी क्या मेल रहेगा और एज ग्रेटर देन 21 दोनों कंपलसरी चाहिए. ओके सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इक्वल एंड ओपन ब्रैकेट. मेरा लॉजिक क्या रहेगा जेंडर शुड बी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेल और मेल रहेगा तो एज should be greater than equal to 21. So this is the first logic that I have to give. Enter false बोल रहा है. और इस सेकेंड लॉजिक एंड ओपन ब्रैकेट एंड क्यों करें दोनों कंपलसरी फीमेल रहेगा तो ग्रेटर देन 21 ग्रेटर देन 18. सो फीमेल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में एफ फीमेल again to the capital that is not a case sensitive नहीं रहता है. एज again greater than equal to 18 close bracket enter. Let's check how our logic works. It's a female, 13 false perfectly. If I give the age of 18, so it shows true exactly. अगर मेल रहेगा मेल देता हूँ मैं यहाँ पे मेल 18 false है लेकिन if I put it as age of 25 it shows true. So it works. Now मेरा कंडीशन कैसा देखो एलिजिबिलिटी कैसा है मेल रहेगा तो ग्रेटर देन फीमेल रहेगी तो ग्रेटर देन 18. सो मुझे क्या चाहिए आइदर मेल का लॉजिक वर्क होना चाहिए या आइदर फीमेल का लॉजिक वर्क. सो मुझे क्या करना है ये दोनों लॉजिक को और में ऐड करना है. क्या करना है और में ऐड करना है. सो लेट्स ऐड इन द और में क्या आएगा दो लॉजिक्स आएगा. पहला लॉजिक ये वाला आ जाएगा और दूसरा लॉजिक विल कम दिस वन. सो मैं क्या करता हूँ और ओपन ब्रैकेट आई प्रेस एंड ओपन ब्रैकेट. फर्स्ट लॉजिक जेंडर शुड बी इक्वल टू मेल. just hold on I'll close this one. Okay so और पहला लॉजिक है जेंडर शुड बी इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में मेल कॉमा एंड हिज एज शुड बी greater than equal to 21. So that is your first logic. I have to close bracket. I will give the comma. So और में का first logic complete हो गया. Now I want to give the second logic. I again press and open bracket. First logic is gender should be equal to female F, and if she is female, the gender is female, then age should be greater than equal to 18. Okay, that is our second logic. So I put it in over there. So this is my or में से first logic, और का second logic. I close or enter. So both logics रहेगा. तो और में आइदर कौन सा तो परफेक्ट होना चाहिए. अगर फीमेल 18 है देखो ट्रू बता रहा है. ओके मेल है दोनों फॉल्स है. यहाँ पे 21 बता रहा हूँ तो ट्रू बता रहा है. नाउ टू पुट इट इन अ कहाँ पे पुट करना है इसको इफ के अंदर लॉजिक. सो यहाँ पे इफ ओपन ब्रैकेट देता हूँ. सो लॉजिक टेस्ट मेरा पूरा कंप्लीट है ऑलरेडी. सो टू गो फॉर द वैल्यू ऑफ ट्रू. सो यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ. व्हाट इज वैल्यू ऑफ ट्रू इज एलिजिबल. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई प्रेस एलिजिबल कॉमा अदरवाइज डबल इन्वर्टेड कॉमा आई प्रेस नॉन एलिजिबल. सो क्लोज ब्रैकेट एंटर. सो शोज एलिजिबल. हम लोगों ने डेटा थोड़ा वेरी किया. इट विल नॉट बी गेट मैच. यहाँ से देखो एलिजिबल नॉन एलिजिबल. So this is how you can add and or both logics together to find out your answer. Okay, so let's take next example 7. Calculate the commission of the salesperson as per the following criteria. Okay, now here it's again given in a reverse. एक previous assignment में हम लोगों ने देखा था जहाँ पे भी ऐसे ही दिया था. Let's take equal if open bracket if sale is greater than 20,000. यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 20,000 का लॉजिक ले लो कॉमा कितना 20% ऑफ द सेल्स. सो सेल्स इनटू 20% कॉमा अगेन क्या आएगा आपका इफ ओपन ब्रैकेट इफ सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 कॉमा कितना है अगेन सेल्स इनटू 15% कॉमा देन रिमेनिंग वैल्यू हैज सेल्स इनटू 8
परसेंटेज. सो यहाँ पे दो बार क्लोज ब्रैकेट एंटर. सो इज द 2400, 5600 एंड 640. सो देखो यहाँ पे लॉजिक फिर से इन रिवर्स डायरेक्शन दिए. सो वी हैव टू टेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल 20,000 के ऊपर है क्या तो आपको 20% देना है. अगर 20,000 10,000 के ऊपर है तो 15% देना है. और 10,000 के नीचे जितने भी रहेंगे उसको 8% देना है. सो दिस इज हाउ दिस लॉजिक विल follow. Now next is company needed to know the end date of the employment. The start date is enter. The contract duration is enter in months. Okay. So this is the example of again date function. It is by mistakenly comes over here. So equal. So start date plus duration months enter. So आपको यहाँ पे क्या आएगा वर्क डे ई डेट है ई डेट एंटर फर्स्ट डेट comma how much months enter shows the end date of your employment. Okay, so now next assignments it's also date function inclusive of आपका if statement यूज कर. So let's focus first of all कि आपको क्या करना है यहाँ पे. There's a left alignment for this. Okay. थोड़ा बड़ा कर दो क्योंकि बड़ा फॉर्मूला आने वाला है इसमें. Now company decided not to end the contracts on Saturday Sunday. Okay. यानी दिस इज अ स्टार्ट डेट और ड्यूरेशन 3 महीने का है. जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाएगा तो इट शुड नॉट बी एंड ऑन सैटरडे संडे. वीकडे फंक्शन एज यूज टू आइडेंटिफाई एक्चुअल वीक डेट. ओके, वीकडे हैज 6 to 7. सो ये आप कंसिडर मत करो. देन सबट्रैक्टेड 5 फ्रॉम द डेट. विल डेवलप आवर ओन लॉजिक्स. नो इशू. ओके. इंश्योर द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉल्स ऑन फ्राइडे. यस, अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होना चाहिए. इट शुड बी एंड ऑन सैटरडे. इट शुड बी एंड ऑन फ्राइडे. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो वीक डे निकालने के लिए पहला ई डेट निकालते हैं. ओके. सो इक्वल ई डेट ओपन ब्रैकेट करता हूँ मैं. सैटरडे लेना आपको कॉमा एंड ऐड ड्यूरेशन ऑफ द मंथ्स इन ईयर. सो जस्ट यू हैव टू क्लोज द ब्रैकेट एंटर. सो आपके पास डेट आ जाएगा. व्हाट डेट यू वांट टू कीप. यहाँ पे डेट आने के बाद देखो मंडे क्लोज हो रहा है. सो इट डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इशू. लेकिन अगर हमारा वीकडे निकालना हम लोग को तो लेट स्टार्ट वीकडे. हम लोग डालते हैं ओपन ब्रैकेट. मैंने सीरियल नंबर लिया कॉमा एंड आई पुट द रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप में यहाँ पे देखो मैं क्या ले रहा हूँ मंडे. आई टेक दिस एज अ मंडे टैब. मंडे एज अ फर्स्ट डे. तो सैटरडे संडे आपका 6 and 7 आ जाए. क्लोज ब्रैकेट. सो वीकडे में अगर मैं जनरल फॉर्मेट ले रहा हूँ यहाँ पे सो इट शोज 1. मंडे यानी फर्स्ट डे आ रहा है. मंडे इसके लिए फर्स्ट डे. नाउ व्हाट द लॉजिक सेज एक्चुअली. देखो आपको लॉजिक क्या डालना है. मैं इफ ओपन ब्रैकेट डालता हूँ. इफ वीकडे ऑफ ई डेट प्लस ड्यूरेशन यानी आपका स्टार्ट डेट और मंथ ऐड करने के बाद जो वीकडे आ रहा है इफ दैट वीकडे इज इक्वल टू 6. क्या रहेगा. अगर वो वीकडे क्या रहेगा 6 रहेगा. 6 यानी सैटरडे को एंड हो रहा है ऐसा लिया कॉमा. तो क्या होना चाहिए एक्चुअली जो भी आपका ई डेट से डेट आएगा उसमें से 1 माइनस होना चाहिए. बिकॉज देन इट विल बी लैंड ऑन सैटरडे रहेगा तो इट विल बी लैंड ऑन फ्राइडे. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ई डेट लेता हूँ. ई डेट का स्टार्ट डेट आपका दिस वन कॉमा 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा. देन क्लोज ब्रैकेट और उसमें से आपको -1 करना है. क्या करना है -1. यानी वीकडे ऑफ ई डेट इज फॉल इक्वल टू 6. देन ई डेट शुड बी -1. So this is first value true, comma value false में if open bracket again करता हूँ. Then I have to follow same logics again. यहाँ पे मैं इसको लॉजिक को ना कॉपी करता हूँ. नो इशू. बिकॉज सेम लॉजिक खाली उसमें कंडीशन 2 चेंज होने वाला है. यहाँ पे देखो मैं इसको पेस्ट करता हूँ. नाउ इफ वीकडे ऑफ ई डेट इज इक्वल टू 7 आ रहा है. 7 यानी क्या आ रहा है संडे. क्या आ रहा है 7. देन आपको क्या करना है यहाँ से
यू टू -2 करना है, यानी इट शुड बी लैंड ऑन फ्राइडे 2, कॉमा अदरवाइज अगर दोनों कंडीशन नहीं हो रहा है तो आपका जो रेगुलर डेट आ रहा है वही लेना है। तो आपको स्टार्ट डेट कॉमा और मैंने यहाँ पे कितना मंथ्स है वो ले लिया, आई क्लोज ब्रैकेट। ओके, सो यहाँ पे आपका सेकेंड इफ क्लोज हो गया, देन यू हैव टू क्लोज द फर्स्ट इफ। तो यहाँ पे फर्स्ट इफ, सो एंटर प्रेस करता हूँ टू गिव द फॉर्मेट ऑफ दिस वन। सो इसको मैं करता हूँ कॉपी फॉर्मेट, आई यूज दिस फॉर्मेट। ओके, सो आई पुट इट इज अ लेफ्ट अलाइनमेंट। देखो मंडे 6 मार्च ले रहे हैं, ट्रैक करता हूँ। सो दीज डेट्स आर फॉल्स बिटवीन फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे। लेट्स चेक वो डेट कौन सा आ रहा था, हम लोग देखते हैं। ओके, सो मगर मैं यहाँ पे इक्वल ई डेट लेता हूँ, स्टार्ट डेट लिया कॉमा और ड्यूरेशन लिया मैंने, एंटर। आई फॉर्मेट दिस फॉर्मेट पेंटर से एंटर। सो मंडे इफ आई ड्राइव, सो यहाँ पे देखो ये संडे को और ये सैटरडे को आ रहा था, अगेन बोथ फॉल्स ऑन फ्राइडे। ये तीनों संडे को कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो रहा था, अगेन दैट फॉल्स ऑन फ्राइडे। सो यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया मैंने, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। देखो यहाँ पे मैंने पहला लॉजिक टेस्ट लगाया वीक डे, यानी यहाँ पे मैंने ई डेट निकाला पहला। इफ वीक डे ऑफ दैट ई डेट इज इक्वल टू 6, ओके 6 यानी क्या हो गया, दैट इज सैटरडे। सैटरडे रहेगा तो आपका जो ई डेट का वैल्यू डेट आ रहा है उसमें से एक डेट माइनस करना, तो फ्राइडे आ जाएगा। सेम लॉजिक मैंने फिर से फॉल्स स्टेटमेंट में डाल दिया, यानी अगर 6 आया तो मुझे डालना है, नहीं तो फॉल्स स्टेटमेंट में फिर से मैं क्या चेक करता हूँ, ई डेट चेक करता हूँ। इफ दैट ई डेट इज इक्वल टू 7 यानी दैट क्लोजेस ऑन द संडे, अगर संडे को क्लोज हो रहा है देन मुझे क्या करना है, 2 डेट से माइनस करना है, अदरवाइज इट कम्स अंडर द। ओके, अगर दोनों भी नहीं है 6 और 7 नहीं है तो आपका रेगुलर जो डेट है वही लेना है, क्योंकि सैटरडे संडे रहेगा देन ओनली यू हैव टू कम ऑन द फ्राइडे, अदरवाइज रेगुलर डेट जो है वही रखना। सो यहाँ पे वैल्यू फॉल्स में आपने रेगुलर डेट डाल दिया एंड जस्ट प्रेस एंटर। सो दिस इज हाउ यूर इफ फंक्शंस एंड डेट फंक्शंस तो मीन्स इक्वली हम लोग यूज करके वी कैन क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्राइडे। So let's take another next example. Okay, now for each product if the end inventory is less than equal to 15 units, this is end inventory, अगर 50 units से रहेगा, are ordered to bring stock back up to 200. Okay, okay, enough units are ordered to bring stock back up to 200. No, yes, no. Order place, yes or no. Okay, so आपको ऑर्डर प्लेस करना है कि नहीं बता रहा है। इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट देता हूँ, लॉजिक टेस्ट क्या आएगा, इफ एन इन्वेंट्री इज लेस देन और इक्वल टू 50। ओके, लेस देन इक्वल टू वैल्यू ट्रू क्या आएगा, ऑर्डर टू बी लेस, यस, वाई, यस, अदरवाइज नो। सो क्लोज ब्रैकेट एंटर, नो बोल रहा है, नो, ट्रैक करता, बोथ हैज टू बी गेट यस। ओके, ऑफ यूनिट्स, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना, कितना यूनिट्स ऑर्डर करना पड़ेगा। सो ऑर्डर विल बी बैक टू 200, 200। अगर कम रहेगा 50 से तो मुझे ऑर्डर करना है दैट अप टू बैक टू 200। सो कितना ऑर्डर करना पड़ेगा 200 आने के लिए। सो यहाँ पे देखो सेम इफ यूज करता हूँ, इफ ओपन ब्रैकेट, लॉजिक टेस्ट क्या बोल रहा है, इफ एन इन्वेंट्री इज लेस देन और इक्वल टू 50। ओके, यानी 50 या 50 से कम है। ओके, तो वैल्यू ट्रू, 50 से कम है तो मुझे कितना ऑर्डर करना है। ओके, यानी 50 से कम है तो ऑर्डर टू बी प्लेस यस। सो कितना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, सो द स्टॉक विल ब्रिंग बैक टू 100। ओके, सो 100 बैक टू स्टॉक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास 40 है तो क्या करना पड़ेगा, 200 माइनस वट एवर द स्टॉक यू हैव। सो यहाँ पे 200 माइनस आपको इन्वेंट्री देना, अगर लेस देन रहेगा तो, कॉमा, अदरवाइज यू हैव टू ऑर्डर 0 वैल्यू।
सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना ऑर्डर करना है, 0, ट्रैक करता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, कितना ऑर्डर प्लेस करना है, दैट विल बी शोन. सो दैट इज 160, 180, अदरवाइज 0. यानी जहाँ पे 50 से कम रहेगा तो 200 माइनस रिमेनिंग क्वांटिटी, उतना मुझे ऑर्डर करना है, सो दैट मेरा स्टॉक फिर से 200 हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट लॉजिक इज ईच स्टूडेंट गेट्स एन A if the score is 90 and above, S for the satisfactory if score is 60 or above but less than 90, or U unsatisfactory if is 60 up below 60. सिंपल लॉजिक है, हम लोग नेस्टेड इफ यूज करेंगे. इफ स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ स्टूडेंट स्कोर 90 और अबो, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 90, उसको क्या देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा वी विल गिव इट ए कॉमा, अदरवाइज फिर से इफ ओपन ब्रैकेट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, आपको देना है लॉजिक में सेटिस्फैक्ट्री एस, अदरवाइज आपको क्या देना है वहाँ पे, अनसेटिस्फैक्ट्री. सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में आई प्रेस यू. सो यहाँ पे 2 बार क्लोज ब्रैकेट करना है क्योंकि आपने 2 बार यू इफ यूज़ किए. सो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ड्रैग हो गया. तो देखो अबो 90 जो रहेगा दैट ए होल क्या गया, दैट इज ए ग्रेड, एंड बाकी एस अबो 60 रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन एक बिलो है तो उसको अनसेटिस्फैक्ट्री बोल के यू ग्रेड मिला. सो दिस हाउ we can solve. Next example, let's take for the 12. Okay, investors sell stocks if its price has gone up 3 consecutive days including the current date. So day 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, तो बोल रहा है investors sell the stock if its price has gone up. Okay, यानी अपसाइड कंजिक्यूटिव 3 days अपसाइड गया तो उसको क्या करना है, इंक्लूडिंग करंट डेट, यानी आज भी अप जा रहा है, कल भी अप जा रहा है, परसों भी आज जा रहा है, तो ये 3 दिन कंटिन्यू वो अप जा रहा है, तो आपको क्या करना है, उसका स्टॉक उसको सेल के लिए यस देना. ओके, तो हाउ वी आर गोइंग टू कीप दिस वन, लेट्स चेक हाउ वी आर गोइंग टू. सो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ से आपको और लॉजिक लगाना पड़ेगा. यहाँ पे तो 9 आ जाएगा बिकॉज वी आर टेकिंग डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दैट. सो टू पुट द लॉजिक फ्रॉम ओवर हियर, तो इक्वल इफ, यहाँ पे देखो लॉजिक्स बहुत सारे हैं लेकिन आंसर एस और नो. सो आपको तीनों कंपलसरी चाहिए, तो यहाँ पे एंड ओपन ब्रैकेट लिया मैंने, फर्स्ट प्राइस लिया, ओके, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में अप रहेगा तो यूपी अप कॉमा, सेकेंड इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में यूपी अप कॉमा, थर्ड आज का डेट भी इंक्लूडिंग बोला है, सो इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉम में अप. तो आपको क्या करना है, उसको सेल करना है, तो आप सेल करेंगे यस. अगर 3 कंसेक्यूटिव डेज रहेंगे, इन्वेस्टर सेल स्टॉक इफ द प्राइस हैज गॉन अप 3 कंसेक्यूटिव, सो अपसाइड है तो उसको बोलेंगे यस सेल करेगा हूँ कॉमा, अदरवाइज डबल में नो, क्लोज ब्रैकेट एंटर, सो इट शोज नो. अभी यहाँ पे आपको ड्रैग करना है, सो यहाँ पे एस दिखा रहा है क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव डेज में वो सेल हो गया. दिस इज हाउ यू कैन पुट योर लॉजिक्स इन दिस. क्लियर है? एनी डाउट? Let's go for the lecture example, 13 example. This is the last example, I think. Okay, any student who score at least 90 on any of the exams gets a bonus which is 1% of their total score. यानी जो टोटल स्कोर रहेगा उसका 1% उसको बोनस मिलेगा. सो देखो, एनी स्टूडेंट हु स्कोर्स एटलीस्ट 90 ऑन एनी ऑफ द एग्जाम्स गेट्स बोनस. यानी यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट है, इफ ही इसमें से कौन से भी एग्जाम में वो 95 से वो मिल रहा है तो उसको बोनस मिलेगा 1% ऑफ द टोटल स्कोर. सो यहाँ पे इक्वल इफ ओपन ब्रैकेट, अभी 4 एग्जाम में से कौन सा भी एक एग्जाम 95 अब रहेगा तो भी चलेगा, तो आई हैव टू पुट और लॉजिक और ओपन ब्रैकेट. सो द फर्स्ट एग्जाम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 95, एटलीस्ट 95 है
greater than equal to 95 and a minimum 95 marks मिलना चाहिए, that is should be greater than equal to 95. Second, greater than equal to 95, second exam. Third exam, okay, comma, then third exam should be greater than equal to 95, comma, then last exam greater than equal to 95. So or bracket close. Agar if this case happens, greater than symbol, okay, if this case happens, then comma, value of true क्या बोल रहा है, 1% of the total score. So total score के लिए मैंने sum दिया, I select sum, close bracket, into 1%, otherwise 0 bonus. Okay, so bonus 0 ऐस किया, so inverse bonus of 0. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 95 है, 96 है, यहाँ पे किधर भी नहीं है, so it goes as a 0. एरर इग्नोर करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना, इग्नोर है. ओके, so this is how you can apply your formula to derive the logic. So goes down, समझ यहाँ पे assignment खत्म हो रहा है. So do have a practice of these ones as a third assignment of the if. If anyone have any query, drop in a comment box. Yeah, you may call us at any time. Thank you very much. Thanks a lot.